کہ عید کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا۔ بازاروں میں رش بڑھ گیا، خواتین نے کپڑے خرید لیے، اب میچنگ دوپٹے، جیولری، چوڑیوں اور جوتوں کی تلاش ہے۔ مرد بھی خواتین سے کم نہیں، پسندیدہ لباس اور جوتے خرید رہے ہیں۔ عید کی تیاریوں کا احوال بتانے کے لیے فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احمد سعد، اور جھنگ سے محمد رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے، مگر سب سے پہلے رخ کریں گے فیصل آباد کا، جہاں پر احمد سعد ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ احمد، بتائیے گا کیسی تیاریاں جاری ہیں عید کی؟ ہاں جی بالکل، جیسے کہ عید کے باعث جو ہے وہ بازاروں کی جو گہما گہمی ہے وہ عروج پہ ہے۔ اسی والے سے ہم اس ٹائم انارکلی بازار میں موجود ہے، جہاں پہ اس ٹائم شہریوں کا جمع غفیر یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ ایک دو روز جو ہے وہ باقی رہ گئے عید الفطر میں۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جو ہے وہ جاری ہے۔ ہر کسی کی یہی کوشش ہے کہ کم وقت میں جو ہے وہ اچھی اور مناسب چیز لے لے۔ اسی والے سے جو افطاری کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس کے بعد ابھی اس ٹائم اگر آپ دیکھ سکیں تو شہریوں کی بڑی تعداد ادھر انارکلی بازار میں موجود ہے۔ کوئی میچنگ ملبوسات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جولی، جبکہ کوئی جو ہے وہ جوتوں لینے میں مصروف ہے۔ فیملیز، بچے بڑے سب ہی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہر کوئی جو خریداری میں مصروف ہے۔ یہاں پہ فیملی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کتنی شاپنگ ہوگی کہ کتنی باقی رہ گئی ہے؟ کیونکہ چھوٹی عید کو جو ہے وہ ایک خواتین اور بچوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، اور کتنا جو ہے وہ بھائی جان کا خرچہ کرا دیا، کیا کہتے ہیں؟ خرچہ تو جتنا کرواتے ہیں ابھی بھی کم ہے، اور شاپنگ اب ہم ڈیلی آ رہے ہیں شاپنگ کرنے، لیکن شاپنگ ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ کبھی میرا جوتا رہ جاتا ہے، کبھی میری میچنگ وغیرہ ہونے والی رہ جاتی ہے، تو اچھا خاصا خرچہ میں کروا رہی ہوں ان کا، کیونکہ عید کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں ہم سب لوگ۔ آپ بتائیے گا بھائی جان کتنا خرچہ انہوں نے ابھی تک کرا دیا ہے؟ واحد خواتین کی شاپنگ ہے جو چاند رات تک ختم نہیں ہوتی، تو آج کیا رہ گیا جو لینے آئے ہیں؟ بھئی ابھی تو بہت لمبی لسٹ ہے جو رہتی ہے، جو لیا ہے وہ بھی کم ہے، اور خرچہ جیسے وہ کہیں جتنا کریں کم ہے، تو ایسے ہی ہے۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ خواتین کی یہاں پہ جو شاپنگ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، جس پہ جو ہے وہ مرد حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خود کچھ لینا لیں، خواتین کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ لمبی لسٹ ہے ان کی شاپنگ کی جاری ہے، اسے پورا کروانے کے لیے بازاروں کا رخ کیا ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو پیچھے یہاں پہ دکھا سکے تو اس ٹائم جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ جمع غفیر اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہر جگہ پہ جو ہے یہاں پہ شہری موجود ہیں، بچے بڑوں، ایک جانب جو ہے یہاں پہ خواتین، جبکہ دوسری جانب میں مرد حضرات جو ہے وہ شاپنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ مختلف سٹالز لگے ہیں جس میں جو ہے وہ جوتے، چوڑیاں، مہندی، ملبوسات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچے، ان کی گڑیاں، این کے اور بچوں کی جو چیزیں ہیں ان کے سٹالز لگے ہوئے ہیں۔ شہری یہاں پہ آ رہے ہیں کیونکہ افطاری کے بعد سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کل بھی رات گئے بھی جو ہے وہ شہریوں کی جو ہے بازار میں رونقیں جو ہے وہ بڑھ رہی، اسی والے سے آج بھی شہریوں کا اچھا بھلا رش دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہا ہے، کیونکہ کل یا پرسوں جو ہو سکتا ہے کہ چاند رات ہو، تو اس والے سے ہر کسی کی یہی کوشش ہے کہ عید سے قبل ہی اپنی تیاری مکمل کر کے جو ہے ہم خریداری مکمل کر کے جو ہے وہ گھروں میں آ جائے، کیونکہ اس کے بعد جو عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور عوام کا جو ہے وہ جمع غفیر ہے بازاروں کے اندر۔ فیصل آباد سے احمد سعد ہمارے ساتھ موجود ہے، اپڈیٹ کرتے ہیں۔ احمد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اب جھنگ کا رخ کریں گے جہاں سے رمضان مرزا ہمیں جوائن کرے۔ رمضان، بتائیے گا جھنگ میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جھنگ میں بھی اس وقت جو ہے وہ تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ ہم اس وقت دھجی روڈ پر موجود ہیں، جہاں پر نہ صرف خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ شاپنگ میں مصروف ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی تیاری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے ہی مارٹ میں موجود ہیں جہاں پر وعلیکم السلام جناب، الحمدللہ۔ یہ تو میں نے پوچھنا ہے آپ سے، آپ یہ خریدا کیا؟ یہ پینٹ شرٹ خریدی ہے، پینٹ شرٹ خریدی ہے، کوئی ریٹ مناسب مل گیا؟ نہیں، بہت ہائی ہے۔ کتنے کی پینٹ مل رہی ہے؟ پینٹ 1500 روپے کی پینٹ، اور شرٹ 1500 روپے، 3000 روپے پیئر، جہاں 1500 روپے کا دونوں چیزیں ابھی تو کوئی 3000 روپے کا جوتا بھی خریدیں گے؟ ہاں جی، تو مطلب ہے عید جو ہے وہ کوئی 8-10 ہزار روپے میں پڑے گی؟ بہت 15000 روپے میں پڑے گی۔ پیسے مل گئے گھر سے؟ نہیں، کم ملے۔ یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے بھی کچھ خریدا ہے؟ یہ شرٹ لی، پینٹ شرٹ لی ہے۔ کوئی دکھائیں تو صحیح نا کہ کیا خرید کے آئے ہیں آپ؟ شرٹ لی، چوائس بھی تو ہم دیکھیں۔ شرٹ نہیں کہتے ہیں ہم آپ سے، یہ شرٹ لی ہے جناب۔ یہ شرٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور شرٹ ہے۔ اچھا، کتنے کی شرٹس ملی ہیں یہ 1500 کی 2 شرٹیں ملی ہیں، 3000 کی۔ گھر والے یہ سن کر برداشت کر لیں کہ 3000 روپے کی 2 شرٹس ہی لے آئے؟ مہنگائی بہت ہوئی ہے بھائی۔ ابھی اور کیا کیا خریدنا ہے؟ ابھی جوتا پڑا ہے، ابھی جینس کی پینٹ لینی ہے، ابھی کافی کچھ ہے ابھی جینس بھی لینی ہے، تو کوئی شلوار قمیض بنوائیے۔ نہیں شلوار نوریزی ہوتی ہے وہ بھی نہیں خریدنی ابھی تو لینی ہے نا، وہ کتنے کی ہے یہاں؟ نوروزی لینی۔ آپ بڑے خوش ہیں، کچھ خریدا ہے کہ نہیں آپ؟ نہیں ابھی کچھ نہیں خریدا، سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ نہیں آ ریٹ نہیں نہیں بنا، ریٹ بہت آئی ہے آج کل، اس وجہ سے ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں لیا۔
तो प्लान क्या है, क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया? प्लान यही है, जो बारे में है तो ले लेंगे, वरना फिर इसी में ईद मनाएंगे। किसमें, इसी कपड़े में? कपड़ों में। नहीं यार, इसमें ईद तो नहीं होनी चाहिए। भाई बहुत हो गई है सर, इस वजह से। घर से कितने पैसे मिले हैं? घर से 2000 रुपये करते हैं यार, 2000 में तो इस वक्त जो है एक शर्ट नहीं है, जूता रह गया, सिर्फ एक सूट ले लिए। जूता इन्होंने लेना पता है आपको कैसे? दोस्त हैं हम, तीनों मिल के होते हैं, हम कहीं मिल के जाते हैं, जो भी चीज लेते हैं। ये मंजिलें जो हैं वो इस वक्त धज्जी रोड पर मौजूद हैं, खरीदारी में मसरूफ हैं। किसी ने जूता लेना है, किसी ने पैंट शर्ट ले ली है और तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। जी, कि चीजें बड़ी महंगी बिक रही हैं। जंग से रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे फैसलाबाद से अहमद सईद हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही कातिल मच्छर के वार भी शुरू हो गया। अलाइड अस्पताल में डेंगू के 2 नए केस रिपोर्ट हुए। मौसम तब्दील होते ही डेंगू ने सर उठा लिया। डिवीजन भर में शिकार तेज। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में 2 केसेस रिपोर्ट। दोनों मरीजों को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। रवां साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 3 हो गई। महकमा सेहत ने भी सर्विलेंस तेज कर दी। कहीं से भी डेंगू लार्वा बरामद होने पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। महकमा सेहत ने शहरियों से भी अपील की है, डेंगू से मुतल्लिका SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज बच्चों को मजीद बेहतर इलाज की सहूलत मैसर हो सकेगी। अस्पताल में मजीद 200 बेड्स का इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद में मरीज बच्चों की मुश्किलात होंगी कम। अस्पताल में मजीद 200 बेड्स का इजाफा होगा। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने काम का आगाज कर दिया। झांग रोड से चिल्ड्रन अस्पताल के लिए शटल सर्विस भी शुरू की जाएगी। फैसला झांग रोड का चिल्ड्रन अस्पताल के दरमियान फासला ज्यादा होने के बाइस किया गया। मरीज बच्चों को झांग रोड से अस्पताल तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सकेगा। डीन चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मुगल का कहना है, फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन अस्पताल से तंजीम बना रहे हैं, जिससे मुखिम हज़रात मरीज बच्चों के इलाज में किरदार अदा कर सकेंगे। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों पर मुश्तमिल अमला तैनात करने के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रजू कर रहे हैं। हुक्मरान जमात के MPA जफर इकबाल नागरा की ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की अराजी पर मुबैना कब्जे की कोशिश। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान कहते हैं कि यूनिवर्सिटी अराजी की हर सूरत में हिफाजत करेंगे। फैसलाबाद में हुक्मरान जमात के MPA जफर इकबाल नागरा के जरिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की अराजी पर मुबैना कब्जे की कोशिश। यूनिवर्सिटी अराजी की हिफाजत के लिए वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान मुतहरक हो गए। कहते हैं यूनिवर्सिटी अराजी पर किसी को कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं नहीं समझता कि हुकूमत कह रही है कि तुम ये काम करो, लेकिन वो हुकूमत के लिए एम्बेरसमेंट ज़रूर बन रहा है। वो इस्तेमाल कर रहा है, आप कह लें कि मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यकीनन जब गवर्नमेंट को सारे अहवाल का पता चलेगा तो गवर्नमेंट, मुझे कभी यकीन है कि इसको कभी सपोर्ट नहीं करेगी। डॉक्टर इकरार अहमद खान का कहना था कि MPA जफर इकबाल नागरा अपनी पार्टी की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अराजी केस में यूनिवर्सिटी के हक में फैसला सुना चुकी है। इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को सारे इशू बारे आगाह कर दिया है। सियासी अफराद मजहबी रंग की आड़ में जनाजगाह की दीवार गिरा कर जरिए यूनिवर्सिटी की 19 कनाल अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। 3 फैक्ट्स हैं। ज़मीन यूनिवर्सिटी की, नजायज़ काबज सो कॉल्ड अंजुमन, एक्चुअली नागरा साहब, और जो जालसाज वो ज़िलेदार खान। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर फैसला दे दिया। उसको 18 साल लगे इम्प्लीमेंट होने में। 2001 का फैसला 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ। चले देर आए दुरुस्त आए। और 2019 से अब हमारे पास है ज़मीन, और यूनिवर्सिटी के पास हज़ारों एकड़ है, उनमें से ये भी 2.5 एकड़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 2019 में इंतजामिया की मुदाखलत पर जमीन को यूनिवर्सिटी के हक में वागुजार कराया गया था। कब्जे की रोकथाम के लिए वज़ीर आला पंजाब को भी हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए खत लिखा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। के ईंधन का बहरान, सनतकार है परेशान। इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला तुक्का मजीद महंगा हो गया। बंदिश का शिकार इंडस्ट्री की मुश्किलात में इजाफा। इंडस्ट्री में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला तुक्का मजीद महंगा और नायाब। तुक्के का रेट 700 रुपए से बढ़कर 850 रुपए फीमन हो गया। मार्केट में तुक्के की किल्लत भी बड़ा मसाइल बन गई। सनतकारों ने मक्की और सरसों के ऑफ सीजन को तुक्के की कीमतों में इजाफे की वजह करार दिया। कहा दिसंबर से मार्च तक सीजन न होने से सप्लायर्स इस मौसम में अपना स्टॉक कीमतें बढ़ाकर बेचते। सनतकार कहते हैं तुक्के के रेट बढ़ने से पैदावारी लागत में इजाफा होगा। एनर्जी का मुतबादिल न होने से पहले ही मुश्किलात दरपेश है। हुकूमत तुक्के की खुद साख्ता कीमतों में इजाफे का नोटिस ले। कैमरा टीम के साथ शिराज बाट, सिटी 41 फैसलाबाद। कपास की पैदावार मुकर्ररा हद के मुकाबले में 32% कम। कॉटन ईयर 2023-24 के दौरान मुल्क में कपास की 71% के इजाफे से 83,97,000 गांठों की पैदावार हुई है।
कपास की पैदावार मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 32% कम। पाकिस्तान कॉटन जनरीज एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार साल 2023-24 के दौरान मुल्क भर की जीनिंग फैक्ट्रियों में 71% के इजाफे से मजमूई तौर पर 83,97,000 रुई गांठों के मुसावी फुटी की तरसील हुई है, लेकिन ये पैदावार मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 38,53,73,000 गांठ कम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के दौरान टेक्सटाइल मिल्स ने जीनिंग फैक्ट्रियों से 80,43,000 गांठों की खरीदारी की, जबकि 2,93,000 रुई की गांठें बरामदी शोबों की जानिब से खरीदी गयी। 60,475 गांठों का स्टॉक ताहाल प्रोसेसिंग के लिए मौजूद है। नए सीजन की कपास भी 1.5 से 2 माह में मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। सहाफती तंजीमों का एंटी करप्शन की जांच और जाली मुकदमों के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब मेंबरान ने एंटी करप्शन दफातर के बाहर एहतजाज किया। फैसलाबाद में रीजनल एंटी करप्शन दफ्तर के बाहर सहाफी कम्युनिटी सरापा एहतजाज। एहतजाजी सहाफियों का कहना था एंटी करप्शन मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज केस के सिलसिले में पेश होने वाले 2 सहाफियों पर तशद्दुद किया। जफरान सरवर और नदीम जोदानी को कई घंटे तक हिफ्ज़े बजा में रखा गया। बाद मुज़ाकरात के लिए आने वाले सहाफी और तशद्दुद का शिकार बनाने वालों पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया। फैसलाबाद प्रेस क्लब के नदीम जावदानी उनको बाकायदा तौर पर अगवा किया गया और उनको हिरासत में लेकर टार्चर किया गया और फिर उसके बाद सीनियर सहाफियों का जो FIRs का इनेकाद किया गया। तो ये पुलिस और एंटी करप्शन का गठजोड़ बेनकाब करने के लिए हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं एंटी करप्शन दफ्तर के सामने। मुजाहिरीन का कहना था सहाफी रियासती अदारों में होने वाली मनफी सरगर्मियों को बेनकाब करते हैं। अदारों में काली बेड़े अपनी सलाह करने की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आती हैं। 36 सहाफियों पर दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत झूठी FIR काटी गई, जो एंटी करप्शन और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। उल्टा पुलिस ने हमारे साथियों पर और मुझ समेत दीगर दोस्तों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब हमारा काम सच लिखना है, सच बोलना है और हम सच बोलते रहेंगे, सच लिखते रहेंगे और सच दिखाते रहेंगे। रीजनल डायरेक्टर बलाल सरोया ने एहतजाजी सहाफियों के साथ मुज़ाकरात किए। बलाल सरोया ने तशद्दुद में मुलव्वस मुलाजमीन को मुअत्तल करने और FIR खारिज करने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन इरफान मलिक के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। अवामी खिदमत कमीशन पंजाब हुकूमत ने जिले सतह पर महकमों की सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमीशन बना दिया। अवामी खिदमत का मिशन पंजाब हुकूमत ने जिला सतहों पर महकमों की सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। मसाइल के हल के लिए फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। नून लीगी MNA चौधरी शहबाज गुजर कमेटी कन्वीनर मुकर्रर। MPA खान बहादुर डोगर, जाफर अली बुचा, आरिफ गिल मेंबर होंगे। MPA राव काशिफ रहीम और जफर इकबाल नागरा भी मेंबर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया है। सुई गैस फैस्को के हेड्स और सूबाई महकमों के तमाम जिले सरबराह कमेटी में शामिल। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ और एजुकेशन भी कमेटी के मेंबर्स होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कमेटी की तश्कील के लिए मरासला जारी। कोऑर्डिनेशन कमेटी अवामी फलाही मंसूबों की मॉनिटरिंग करेगी, जबकि सर्विस डिलीवरी के लिए अवामी शिकायत का फौरी इजाला करने की पाबंद होगी। कमेटी फैसलाबाद में अमन अमान इंतजामी अमूर की अंजामदही में किरदार अदा करेगी। बताएं चिन्योट में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का सिलसिला भी शिद्दत इख्तियार कर गया। रमजान में लोड शेडिंग न होने के दावे धरे के धरे रह गए। चिन्योट में गर्मी की शिद्दत में गैर यकीनी इजाफा, दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम तब्दील होते ही लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। शहर में 5 घंटे जबकि देहातों में लोड शेडिंग का दुरानिया 6 घंटों से भी तजावज कर गया। एहतिकाफ में बैठे मुतकिब समेत रोजादारों को शदीद मुश्किलात का सामना। मसाजिद में पानी की भी किल्लत, बिजली बंद होने से इफ्तारी की तैयारियां भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। लोड शेडिंग के बायस दीगर शोबों की तरह दर्जियों का कारोबार भी मुतासर हो गया है। तवील लोड शेडिंग से रोजादार परेशान तो दर्जी भी हुकूमत से नाला, बोले ईद में बस चंद रोज बाकी हैं और आर्डर तैयार करना मुमकिन नहीं रहा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोड शेडिंग भी बढ़ रही है, काफ़ी परेशानी हमें हो रही है। एक टाइम टेबल होता है हमारा कि एक दिन में 5 सूट सीने हैं या 10 सिलाई करने हैं, उसी हिसाब से अभी लाइट बंद हो रही है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। दर्जियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इससे पहले हंगामी बुनियादों पर लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए ताकि उनका कारोबार मजीद मुतासर ना हो और लोगों के आर्डर्स बर वक्त तैयार हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। ईद उल फित्र करीब आ गए। शहरी सिलाई के लिए दिए गए सूटों को लेने के लिए दर्जियों की दुकानों का रुख करने लगे। चंद दिन बाकी शहरी सिलाई के लिए दिए गए सूटों को लेने के लिए दर्जियों की दुकानों का रुख करने लगे। किसी के कपड़े सिल गए तो किसी को दर्जी तसल्लियां और दिलासे देने लगे। गाहकों का कहना था कि रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में सूट सिलाई करने के लिए दिए थे, लेकिन अभी तक सिलाई नहीं हुए। अगर सूट ना मिले तो ईद पर क्या पहनेंगे। मैं तीसरे रोजे सफदर भाई को सूट दे के गया था और आज 28वां रोजा और सफदर भाई ने अभी तक हमारा सूट नहीं सिलाई करके दिया है। हम तो बड़ा परेशान हो रहे थे कि अब ईद पे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, पर सफदर भाई बड़ा यकीन के साथ कह रहे हैं आपको इंशाल्लाह ताला चांद रात वाले दिन लाजमन सूट देंगे।
दर्जियों का कहना है कि ग्राहकों को हर सूरत चांद रात तक कपड़े सिलाई करके देंगे। ईद उल फितर पर सूटों का रश है। दिन रात एक करके तमाम तर मशीनें चला रखी हैं ताकि शहरियों को बर वक्त सूट सिलाई करके दे सकें। हम उनके वादे में पूरे उतरेंगे इंशाल्लाह, और जो वादा किया पूरे उतरेंगे। हम जैसे सिलाई किया वैसे करके दिखाएंगे उनको। कल चांद रात को उनके सारे को तैयारी मुकम्मल होगी सूटों की। दर्जियों का कहना है कि मियारी सिलाई के लिए ग्राहक अच्छी दुकानों का रुख करते हैं ताकि ईद पर कपड़े पहने हुए अच्छे लगें। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। इसके साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।